Hello everyone, welcome to the linear programming series. In the last lecture video, we have done the graphical method linear programming problem which are in the bounded region. Okay, in this video, we will cover the unbounded plus the infeasible region, that is what is infeasible region and what is unbounded region problems. Okay, so in this video, we will these three questions, that is the minimize our objective function, maximize our objective function, and third question obviously that is there is something unique in the third question. Okay, so let's start our video without wasting the time. Okay, so yes, this is our first question, that is we have to minimize our objective function which is given to you as that. Okay, the constraints are given to you, that is the x plus y is greater than equal to 30, then 3x plus 5y is less than equal to 15, and x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. First step is same. First is what? That we will not touch our objective function. What we will do? We will find the coordinates of our constraint to draw the graph. तो आप देखेंगे that it is give from the first equation. Find the coordinate. So जब आप x को 0 लेंगे, you will get y coordinate to be 8. So first coordinate will be 0, 8. Similarly y को आप 0 ले लीजिए, so x will be equal to 8. Okay, I hope you remember this that आप कुछ टाइम के लिए ये जो इनइक्वालिटी ग्रेटर इक्वल टू का साइन है वो आप फॉरगेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए एंड टेक इट अ सिंपल इक्वेशन. तो एक बार आप x को 0 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू 8 मिल जाएगी एंड देन when you will put y is equals to 0 तो आपको सेकंड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. From the 0 our calculation become the easy. Then similarly for the second equation, that is 3x plus 5y is less than equal to 15. इसके अंदर आप देखेंगे first what you will do, take x to be 0. When x will 0, this part will cancel out. You will get 5y is equals to 15 and y is equals to 3. So on taking x to be 0, y will be equal to 3. Similarly, when y is 0, this part will cancel out. You will get 3x is equals to 15 and x is equals to 5. Okay, so this is the second coordinate. Now start drawing the graph of these coordinates. So from the first equation you can see that is 0 comma 8. So 0 comma 8 is this point and 8 comma 0 is this point. Join these 2 points and you will get the line graph of like this. And then third yes, the second equation coordinate is 0 comma 3 एंड 5,0. तो 0,3 आपका y एक्सिस पर लाई करेगा, 5,0 आपका x एक्सिस पर लाई करेगा. देन बाय जॉइनिंग दिस टू कोऑर्डिनेट यू विल गेट द लाइन ग्राफ. जब भी हम लाइन की इक्वेशन को लिखते हैं तो हम इक्वल टू इनइक्वालिटी का साइन नहीं लगाते, इक्वल टू साइन लगाते हैं. ओके, आई होप ये आपको लास्ट वीडियो लेक्चर से पता चल गया होगा. देन फ्रॉम हेयर नाउ अब हमें क्या करना है, हमें वो रीजन निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 इज गिवन टू यू. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन ग्राफ. ओके, तो इसके अंदर आप क्या कीजिए, ओरिजिन कहाँ है, यहाँ पे है. इधर x और y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो x और y को 0 0 पुट कीजिए. तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इधर क्या मिलेगा आपको 0. तो 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, नहीं. तो ऊपर वाला एरिया क्या होगा, शेडेड होगा. ओके, देन सेकेंड इक्वेशन इज गिवन टू यू एज द 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 15. इसके अंदर आप क्या कीजिए, ये सेकेंड लाइन इक्वेशन ग्राफ के अंदर ओरिजिन पे x और y की वैल्यू 0 होती है, तो 0 0 रखने पे आपको 0 मिलेगा. और ये क्या लेस देन इक्वल टू 15 है, यस. तो टुवर्ड्स ओरिजिन वाला रीजन क्या करेंगे आप, एरो से दिखाएंगे, यस
this area satisfy the our equation. Then third equation is given to you as the x is greater than 0, and fourth equation is given to you as the y is greater than 0. When x is greater than 0, then on the y-axis this right hand side part. Okay, when y is greater than 0, so this is the upper part will be shaded. Okay, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको कॉमन कॉमन रीजन निकालना है. क्या आप कॉमन रीजन फाइंड आउट कर पा रहे हैं? नहीं, बिकॉज ये जो है ऊपर वाली लाइन का ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर वाला ऊपर की तरफ शेडेड हो रहा है, नीचे वाली लाइन नीचे की तरफ शेड हो रही है, तो हमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिल सकता. ओके, सो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के ग्राफ को हम बोलते हैं, इस टाइप के ग्राफ को एक तो पैरेलल इक्वेशन का भी ग्राफ आ सकता है आपका. ओके, इसके अंदर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ शेड हो रहा होगा, ये नीचे की तरफ शेड हो रहा होगा, और ये आपका एक्स और वाई और एक्स एक्सिस होगा कुछ इस तरीके से. ओके, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, कॉमन रीजन मिलेगा ही नहीं जो आपका शेड होगा. तो आपको वो रीजन मिल ही नहीं रहा जहाँ पे आपका आंसर मिल सकता है. तो वो कैसा रीजन होता है, वो होता है इनफिजिबल रीजन. और आई हैव रिटन दैट देयर इज नो फिजिबल रीजन, और यू विल राइट दैट देयर इज अ इनफिजिबल रीजन. ओके, ये आपको किस तरीके में मिल रहा है, इनफिजिबल रीजन मिल रहा है जिसमें कि आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है. सो देयरफॉर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, देयरफॉर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. आई होप you understand that is the what is infeasible region. ओके, इनफिजिबल रीजन मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं, यानी कॉमन रीजन जो है आपका जो शेड होता है वो आपका हो ही नहीं रहा इसके अंदर. ठीक है, तो इसके अंदर अपोजिट तरफ के एरिया शेडेड हो रहे हैं. सो इन दिस वे वी विल से आवर एरिया इज इनफिजिबल, सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. सो यू विल गेट द इक्वेशन टू बी लाइक दिस. अब जरूरी नहीं ये मिनिमाइज के अंदर हो सकता है आपको मैक्सिमाइज भी दे रखा होता, तो भी क्या लिखते हैं आप, द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द इनफिजिबल रीजन. ओके, नाउ प्रोसीड टू द second equation, second part. Okay, in the second part you can see that we have to minimize our objective function, and constraints are given to us to be like this. So this is my first constraint. So start finding the coordinates. So how to find the coordinates, that your equation is given to you, that is 2x minus y is equals to minus 5. Okay, what will be your points, you will get when x is 0, x 0 पे आपको y मिल जाएगा 5, एंड y 0 पे y जब आप 0 लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यू -5/2. x आपको क्या मिलेगा, दैट इज जब y 0 लेंगे दैट इज 2x इज इक्वल्स टू -5. इधर से यू विल गेट x टू बी -5/2, दैट इज -2.5. okay, so that is -2.5. this will be your coordinates. Then for the second equation, the second equation is given to you, that is 3x plus 5 is equals to 3. So is equals to 3 means that, yes, so when you put x is 0, you will get y is 3. When y is 0, then x will be 1. Similarly, for the third equation, that is 2x minus 3y is equals to 12. So इसके अंदर जब आप x को 0 पुट करेंगे, you will get y to be -4. Okay, then when you will put y to be 0, then you will get x to be 6. अब क्या करेंगे हम, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. तो देखिए आपको ये क्या मिला, दैट इज 0,5. 0,5 आपका कहाँ लाई करेगा, 0,5 आपका y एक्सिस पे यहाँ लाई करेगा. देन -2.5,0, -2.5 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, दैट इज हेयर. आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ड्रॉ करेंगे लाइन. सो यस, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ लाइन. okay, yes, so this will be your line.
Then for the second equation, that is 0 comma 3 and 1 comma 0. 0 comma 3 again on the on the y axis and 1 comma 0 on the x axis. So by joining these two equation, that yes, from the green color I am showing you the graph of the second equation, that in this way. Yes, I hope this is visible to you. Then for the third equation, that is 2x minus 3y में you are getting the coordinate, that is 0 comma minus 4. 0 comma minus 4 will lie in the uh, negative y-axis. Okay, negative y-axis, that is here, and 6 comma 0 on the x-axis. So the remaining line is showing to you that again I am showing to you from the blue color, that yes, this line, by joining these two coordinates you will get this type of line. I hope it is visible to you. देन हम नेक्स्ट पार्ट क्या करते हैं, हम एरिया शेड करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपको गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन. सो रेड पार्ट यू कैन सी दिस लाइन, ओके, दिस लाइन. सो इसके अंदर आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपका क्या पड़ रहा है, ओरिजिन पड़ रहा है. ओरिजिन हम हमेशा देखते हैं 0 0 पुट करने के लिए. तो व्हेन यू विल पुट 0 0 आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. क्या 0 -5 से बड़ा है, इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5? यस. तो आपका कौन सा एरिया शेड हो जाएगा, आपका टुवर्ड्स ओरिजिन वाला एरिया शेड हो जाएगा. तो आप क्या करेंगे, इस तरफ को टुवर्ड्स ओरिजिन आप एरो बनाएंगे. देन फॉर द सेकेंड इक्वेशन 3x plus 5, that is green line, you can see this line. ओके, इसके अंदर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ओरिजिन पड़ रहा है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ओरिजिन पड़ रहा है. तो जब आप 0 0 पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0. क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3? नो. तो आपका अपोजिट टू द ओरिजिन आपका एरिया शेड होगा. तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरफ को क्या करेंगे, एरिया आप शेड करेंगे. देन आपको थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है, दैट इज 2x माइनस 3y. तो ये ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं, ओके, फ्रॉम द ब्लू कलर आई हैव शोन दैट जब आप 0 0 कहाँ पड़ रहा है, अबव ऑफ दिस लाइन. तो 0 0 पुट करने में आपको 0 मिलेगा. क्या 0 लेस देन इक्वल टू 12 है, यस. सो टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन आप क्या करेंगे, एरो ड्रॉ कर देंगे. सो इन दिस वे अब आपको शेडेड एरिया कौन सा मिलेगा, और आपको क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये राइट हैंड साइड पे, y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 मीन्स अपवर्ड, x एक्सिस पे अपवर्ड एरो बनाएंगे आप. तो आपको कॉमन रीजन कौन सा मिल रहा है, ये सारे एरो जो हैं वो आपके इधर ऊपर की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरफ को आ रहे हैं. आई होप इधर से आपको ये क्लियर होगा ग्राफ. आप अपने हाथ से ग्राफ बनाएंगे तो आपको और क्लियरली ये दिखाई देगा दैट दिस अबव एरिया विल बी शेडेड. इसके अंदर आपको कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, आप देखिए कहाँ कहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन टच हो रही है. दिस पॉइंट, this point, this point on the x axis, this again on the d axis. ये 4 पॉइंट आपके क्या है, ये कॉर्नर पॉइंट्स है. लेकिन ये कैसी फिगर है, ये बाउंडेड नहीं है. ये ऊपर की तरफ शेड हो तो रही है लेकिन ये बाउंडेड नहीं है कहीं से. तो इस टाइप की फिगर क्या होगी, आपकी अनबाउंडेड होगी. लेकिन आपको शेडेड एरिया मिल रहा है यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. तो एक किस टाइप का रीजन है, फिजिबल रीजन है. ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर हमारा एरिया शेड नहीं हो रहा था कॉमन एरिया, तो वो क्या था, इनफिजिबल था. सो आई हैव रिटन दैट शेडेड एरिया PABCDQ. ओके, PABCDQ region which is
unbounded. I have taken the Q point is this. Okay, so this is my shaded area. Okay, then आपको क्या पता है, then on the third step we draw the table. सिमिलरली आप क्या करेंगे, जो आपको चार पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, आप उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. ये मैंने क्या लिया है, दिस इज माय ए कोऑर्डिनेट, दिस इज माय बी कोऑर्डिनेट, दिस आई हैव टेकन एज सी एंड दिस आई हैव टेकन द डी. ये सब कोऑर्डिनेट आपने जो ग्राफ ड्रॉ करे हैं उन्हीं के पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं. दैट इज ए इज 0,5, B is 0,3, C is 1,0 एंड D is 6,0. इसके अंदर आपको कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिला. ओके, जरूरी नहीं है नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है आपको. देन आपको देन सेकेंड कॉलम आपका बनता है जो भी आपको Z गिवन होता है, दैट इज -50x + 2y. ये आपका Z गिवन है. नाउ आफ्टर दैट पुट दीज कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो 0,5 रखने पर इस इक्वेशन में, that is -50x + 2y में you will get 100. Your x is 0, so this will cancel out. Then 20 into y, that 20 into 5 will be 100. Then 0,3 you will get 20 into 3 will be 60. Then 1,0 you will get -50. Then 6,0 you will get -300. Okay, because your y will cancel out, y cancel out to -50x, that is -50 into 6 will be -300. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, now the question ask you have to find the minimize that. Okay, so your minimum value is what, so minimum value आपकी क्या है, -300. वैल्यू जितनी नेगेटिव होती है उतनी ज़्यादा हाँ लेस होती है. ओके, अगर ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती तो आप सबसे छोटी वैल्यू देखते इसके अंदर, दैट इज 50. लेकिन अभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू गिवन है, तो -300 विल बी द मिनिमम वैल्यू. तो देखिए, अगर आपको एरिया अनबाउंडेड मिला है तो हम चेक करेंगे कि क्या ये -300 आपका क्या है, मिनिमम वैल्यू है या नहीं है. सो वी हैव टू चेक दैट -300 इज द मिनिमम वैल्यू. तो आपको जो ये जो मिनिमाइज फंक्शन गिवन था, दैट इज -50x + 20y. इसमें हम चेक कर रहे हैं दैट -300 इज द मिनिमम वैल्यू और नॉट. सो दिस इज आई एम रिटर्न ओवर हेयर. अब आप क्या करेंगे, अब आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं इस साइन को हटा के, दैट इज इक्वल टू का साइन. जब आप x को 0 लेंगे, x को 0 लेंगे तो आपको y क्या मिल जाएगा, y आपको नेगेटिव मिलेगा, दैट इज -15. ओके, आपके पास क्या बचेगा, x 0 हो गया, देन 20y इज इक्वल टू -300. 0 0 will cancel out, then you will get y is equals to -15. Similarly, जब आप y को 0 ले लेंगे, y will be 0, then you will get -50x is equals to -300. Minus minus cancel out, 0 0 cancel out, you will get 6. ओके, आज जब हम लेस देन चेक कर रहे हैं तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सिर्फ लेस देन वैल्यू देखेंगे. तो आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए, दैट इज 0,15 एंड 6,0. नाउ प्लॉट दिस पॉइंट. तो दिस पॉइंट्स आर वेयर, 0,15 आपको कहाँ मिलेगा, आपको इधर नीचे की तरफ मिलेगा कहीं पे, दैट इज आपको नेगेटिव y एक्सिस पे मिलेगा 0,15 एंड 6,0 आपको कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पे मिल जाएगा. नाउ जॉइन द ग्राफ ऑफ दीज टू लाइन, जॉइन द ग्राफ ऑफ दीज टू लाइन, दैट यस. सो ये आपकी कैसी लाइन ड्रॉ होगी, शेडेड लाइन ड्रॉ होगी. क्यों ड्रॉ होगी, देखिए, आई होप ये आपको अब लाइन दिख गई होगी. इन दो को ज्वाइन करोगे तो ये आप शेडेड लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि आपका जो पॉइंट है, जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, लेस देन है. जो क्या है वो लेस देन है, इक्वल टू का साइन लगा.
अब देखिए लेस देन और इक्वल टू के साइन में क्या फर्क है। अगर लिखा है सिर्फ लेस देन यानी लेस देन इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब ये लाइन के सारे पॉइंट, तब हम कैसी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक कॉन्टिन्यूस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपको इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट, इस लाइन पे भी जितने पॉइंट्स हैं वो सब भी क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन जब इक्वल टू का साइन नहीं लगा, जब इक्वल टू का साइन नहीं लगा, सिर्फ लेस देन का साइन है, इसका मतलब क्या है, हम डैश लाइन शो कर रहे हैं। वाई? बिकॉज इस लाइन के पॉइंट्स को छोड़ के, यानी 0.1 भी इस तरफ को या इस तरफ को लाइक कर रहा होगा, वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इस लाइन के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे। दैट इज द मीनिंग ऑफ द लेस देन एंड इक्वल टू साइन, ओके, और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। अब देखिए लेस देन एरिया आपको देखना है, लेस देन एरिया। तो लेस देन एरिया मीन्स टुवर्ड्स ओरिजिन, अगर आप देखेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन, अगर आप देखेंगे ओरिजिन किधर पड़ रहा है, ओरिजिन इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यानी अबव साइड पे पड़ रहा है। तो जब आप 0 0 रखेंगे, इस 0 0 लेस देन -300, क्या 0 जो है -300 से छोटा है? नहीं। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का, इस लाइन के इस साइड वाले रीजन आपके आएंगे, और इस साइड वाले रीजन मीन्स आपका इधर क्या है, बहुत सारे कॉमन पॉइंट आपके लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है इसके अंदर इतने एरिया पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके मिनिमम वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमारा रीजन बाउंडेड है, इसलिए हम एक वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए देयर इज अ कॉमन पॉइंट, देयर इज अ कॉमन पॉइंट्स इन द ग्राफ। तो आपको बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे ग्राफ के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सॉल्यूशन अभी भी एग्जिस्ट, सॉल्यूशन जो है आपका अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। हम -300 को देख रहे थे, लेकिन -300 का जब हमने ग्राफ बनाया, अगर आपको ग्राफ कैसा मिलता है, उस ग्राफ की लाइन अगर आपकी शेडेड एरिया के अंदर लाई कर रही है, अगर इफ द लाइन ऑफ द ग्राफ जिसकी मिनिमम वैल्यू वी आर चेकिंग is lie in the shaded region, then we will say there are a common point, then this is not a minimum value, or there is no maximum value if question asked to you to be like this. I hope ये आपको अच्छे से clear होगा। First we find the coordinates, then we draw the graph of the equation, then we find the minimum value from the table, okay, that is asked to us, and this the graph is the unbounded, okay, and the feasible region। then जो वैल्यू हमें मिलेगी वी विल चेक दैट इट इज द मिनिमम और नॉट। वो कैसे चेक करेंगे, अगर मिनिमम पूछिए देन लेस देन, अगर मैक्सिमम पूछी होती तो हम क्या करते, ग्रेटर देन का साइन लगाते। ओके, तो आफ्टर फाइंडिंग दैट वैल्यू हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद अगर वो आ, जो ग्राफ है, उस वो जो लाइन ग्राफ है, अगर वो शेडेड एरिया के अंदर लाई करता है, देन वी विल से आवर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द कॉमन पॉइंट्स इन द रीजन, एंड इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट देन वी विल से हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स व्हाट, देखिए अगर आपको ये जो शेडेड लाइन है ये आपको कुछ इस तरीके से मिलती है, ये क्या है आपकी शेडेड रीजन में लाई नहीं कर रही, इस तरीके से मिलती, जो शेडेड रीजन में लाई नहीं कर रही, देन वी विल से -300 इज आवर मिनिमम वैल्यू। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग। देन नाउ प्रोसीड टू द थर्ड पार्ट, that we have to maximize our objective function। okay, the first constraint, then second constraint, then third constraint, and then fourth constraint। so you can see आपको हर बार x is greater than equal to 0 गिवन होता है, इधर what is given, x अभी भी greater than equal to 0 ही है,
बट इधर क्या है, अब x जो है वो 3 से बड़ा है। ओके, देन x इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ, x इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ, हाउ यू विल ड्रॉ, इट विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस। तो ये आपको कुछ इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा। ओके, आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा जो किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3। For the second equation, first we will find the coordinate. First I put x is 0, then we get y is equals to 5, then y is 0, we get the x is equals to 5. Similarly, for the second equation, I will find the coordinate first, that is put x 0, then we will get y is equals to 3, then put y is equals to 0, you will get x is equals to 6. Okay, and fourth equation is what, that is y is greater than equal to 0. I hope आपको ये coordinates निकालने अच्छे से आ गए हैं। Now what we will do, first we will draw the graph. So you can see the graph of the first equation, that is to be the line parallel to the y-axis. Okay, that is greater than equal to, say that is equal to 3. For the second equation आपको क्या मिल रहा है, that is 0,5 and 5,0. So 0,5 will be here and 5,0 will be on the x-axis. So for here my graph will be to be like this. I hope you can see the color. Yes. Then my third equation graph, that is 0,3 and 6,0. 0,3 on the y-axis and 6,0 will be on the x-axis. Okay, 0,3 on the y-axis. Then my graph will be from the blue color. I am showing to you that in this way, yes, you will get in this way your graph. Proceed to the further step, shade the region. So the first equation is x is greater than equal to 3. So x की वो सारी वैल्यू जो क्या है, greater than equal to 3. So this right hand side part will be shaded. So draw the area that is from the right hand on the right hand side. Then in the second equation, that is you can see this is the green line graph. Okay, in the green line graph, that is put the towards origin point. Okay, so put the x or y equal to 0. So you will get 0. Is 0 greater than equal to 5? No. तो हमारा कौन सा एरिया शेडेड होगा, अपवर्ड, दैट इज अपोजिट टू द origin. So this is opposite to origin. Then blue line graph, that is for the third equation, that x plus 2y is greater than equal to 6. You can see here that put the towards origin point, you will get the 0. Is 0 is greater than equal to 6? False. So this will also be shaded opposite to the origin, that is upward. Okay, then fourth equation is y is greater than 0. Y is greater than 0 means the upward portion. The upward portion. I hope till now the question is clear. Now the common region you can find that this is the this region. This is upward region. Okay, this is the right hand side region is the common region which is unbounded because इसका इस साइड कोई पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, ये कहीं तक भी जा सकता है, and this is the feasible region. So I have given the name, that is this is the P, and then A, that is common point between the green and red, and this is my B point, that is red and blue, and this is my C point, that is lie on the x-axis, and this is my Q point. Okay, then you know the A point? No, the A point, we have to find the A point. The A point lie between the red and green color line. So the equation of red is 3 and the equation of green line is x plus y is equals to 5. So simply put the x to be 3. When you put x is equals to 3, you will get 2. So your A point,
this is your A point. A coordinate will be 3, 2. Your B point lie on the intersection of green and blue point. Okay, blue line. Okay, so green line equation is x plus y is equals to 5, and blue line equation is x plus 2y is equals to 6. Similarly, subtract the equation where x will cancel out. You will get y is equals to 1 and x is equals to 4. So your B coordinate will be 4, 1. This will be your B coordinate. So now make the table for the third step, that is A, B, C coordinate. Your Z function, objective function is given to you, that is minus x plus 2y. Put these coordinates in the objective function. So put the value of x is 3 and y is 2. That is minus 3 plus 2 multiply 2. You will get 1. Then minus 4 plus 2 multiply 1. You will get minus 2. Then similarly put the third coordinate in the objective function. You will get minus 6. हमें पूछा था maximize that. We have to find the maximum value. So maximum value is what? 1 at the coordinate A. Okay, at A coordinate. अब हमारा रीजन कैसा है? अनबाउंडेड है. That is the feasible region which is unbounded. So we have to check कि 1 जो है वो हमारी maximum value है या नहीं है. So what we will do, अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? माइनस एक्स प्लस 2y. So minus x plus 2y. For the maximize, what we will use? We will use the greater than sign, equal to 1. अगर हमें इस ग्राफ की लाइन अगर हमें शेडिड एरिया में मिलती है, then 1 is not the maximum value. Okay, so minus x plus 2y, first find out the coordinate. So take it as equal to sign. When x is 0, you will get y is equals to 1 by 2. Okay, when y is 0, you will get x is equals to minus 1. Okay, here is greater than equal to sign. Half means 1 by 2 means 0.5. So 0 comma 0.5, 0 comma 0.5 will be lie here, and minus 1 comma 0 will lie here. अब देखिए लाइन कैसी है? सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है. तो कैसी लाइन ड्रॉ होगी? डैश लाइन ड्रॉ होगी. और ये डैश लाइन है, ये आपकी कहाँ जाएगी? शेडेड एरिया के अंदर भी जाएगी. सो देयर आर कॉमन पॉइंट्स. सो देयर आर common points in the feasible region. So therefore no solution exists. Therefore no maximum value. I hope you understood the unbounded problems of the LPP. I tried to understand to make it in a very simple way. I hope you understand the topic, and from the next video lecture we will start our sentence based problem, that is a transportation problem, diet problem, and so on, manufacture problem, like that. Okay, so if you enjoyed this video, keep sharing, and thanks for watching.